all my dear students. Doing the studies very good. Now this is your English mentor Professor Neetu Ghai and I am here to continue with the topic of noun. And we were doing the possessive case of noun and I suppose you have understood the topic of noun very clearly. Noun के जितने भी rules हमने possessive case में किए हैं, I hope आपको समझ में आ गए होंगे. So today also I'll continue with the possessive case and some more important rules of noun, and I'll try to complete the topic of noun today. And after this, we will solve the questionnaires of last year papers, and that also that questions which were based on the errors of noun, so that you can understand whether you have understood the topic of noun or not. So on this note, I once again welcome you all in your own English class. Let's begin possessive noun. So students, this was the last rule which we did yesterday about the possessive case. That is, if we have used than to compare two parties, two objects, and than से पहले अगर possessive case लगा है तो than के बाद भी possessive case use होगा. तो I hope you have understood this. इसी से मिलता जुलता एक और रूल है, सेम इज फॉलोड विथ एज के साथ भी सेम फॉलो होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में वी आर यूजिंग एज 2 times टू डू द कंपैरिजन, तो वी मस्ट चेक इट आउट कि इफ पोजेसिव केस इज यूज्ड बिफोर एज, it should be used after as also. For example, see, Mohan's house is as beautiful as. Mohan's house is as beautiful as. अब ये adjective है, comparison के लिए use हुआ है as Soham's. See this, ये भी possessive और ये भी possessive. Both nouns are in possessive case. तो as के पहले भी possessive, as के बाद भी possessive, जैसा हमने किया था than के साथ. Okay. Ram's car is as fast as Sham's. तो राम की कार श्याम की कार जितनी तेज है. तो जब दो बार as यूज हो रहे हैं तो as से पहले भी possessive, as के बाद भी possessive. Just remember this. Okay? और same we have done with than. फर्क ये है, जब दो बार as यूज होता है तो एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और जब than यूज होगा तो एडजेक्टिव का सेकेंड फॉर्म. दैट मीन्स जैसे अब इसका हम करेंगे मोर ब्यूटीफुल, इसका हो जाएगा फास्टर, जो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है. दिस आई टीच यू इन डिटेल व्हेन आई टीच यू डिग्री, सो वेट फॉर दैट. नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 11. नाउ पे अटेंशन. Possessive case is not used with possessive pronoun. अब जैसे possessive noun होते हैं वैसे ही possessive pronoun भी होते हैं, which you will learn in the topic pronoun. Okay, possessive pronoun कैसे बनते हैं? जैसे कि possessive noun बनते हैं. अब जैसे his car, अब इसमें noun नहीं है, इसमें है pronoun his. अगर मैं इसकी जगह noun यूज करके मैं ये बोलती राहुल्स कार, तो यहाँ पे राहुल क्या है? नाउन. नाउन को हमने पोजेसिव केस कैसे बनाया? एपोस्ट्रोफी लगा के, और इससे राहुल का राइट हो गया कार पे, राहुल का मालिकाना अधिकार कार पे, राहुल की कार. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ राहुल की जगह हिस यूज कर रही हूँ, दिस इज प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ राहुल. तो राहुल में तो हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेसिव केस बनाया था. प्रोनाउन में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता. सो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ये याद रखना. नाउ योर वॉलेट, तुम्हारा वॉलेट. दिस इज नॉट वॉलेट, दिस इज वॉलेट. योर वॉलेट, योर्स वॉलेट या योर वॉलेट एपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं लगेगा. दिस इज रॉन्ग. क्लियर? नाउ हर बैग, उसका बैग. दिस इज ऑल्सो प्रोनाउन, इसमें भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा. दिस इज रॉन्ग. योर फेथफुली, योर्स फेथफुली नहीं. दिस इज रॉन्ग.
Clear? So we don't use possessive in pronoun. That means possessive case is not used with possessive pronoun because ये अपने आप में ही possessive pronoun है, इनको बोलते ही possessive pronoun है. These words shows the possession over the other noun. Your wallet, तुम्हारा wallet. Your bag, तुम्हारा बैग. जब हर बैग से उसका बैग, हर से possessive केस समझ में आ रहा है तो possessive कॉमा और possessive कॉमा के साथ apostrophe s लगाने की जरूरत नहीं है. Understood? Clear? Now the last rule of possessive case, very important, use of double possessives is wrong. That means एक ही सेंटेंस में दो कंटिन्यूअस वर्ड्स में possessive केस नहीं लगेगा. दो कंटिन्यूअस वर्ड्स में apostrophe s नहीं लगेगा, ये याद रखना. See, Vinod's wife's parents are coming. See, this is first possessive, this is second possessive. क्या सेंटेंस का मीनिंग गलत हो रहा है? चेक करो. विनोद की वाइफ के पेरेंट्स आ रहे हैं. जब भी हम apostrophe s लगाते हैं हिंदी में निकलता है का एंड की. रिमेंबर आई गेव यू द हिंट टू मेमोराइज दिस. वही चीज, विनोद की वाइफ के पेरेंट्स आ रहे हैं, तो मीनिंग तो करेक्ट निकल रहा है बॉस. फिर सेंटेंस में क्या गलती है? सेंटेंस में एरर ये है बच्चा, दो पोजेसिव्स एक साथ यूज नहीं होते, तो ये तो गलत है. पर अब लिखेंगे कैसे? उसकी वाइफ के पेरेंट्स तो आ रहे हैं ना, उनको कैसे बताएंगे कि हम आ रहे हैं? कैसे रोकेंगे? हमें बताना तो है कि विनोद की वाइफ के पेरेंट्स आ रहे हैं. अब कैसे लिखेंगे? सी, पेरेंट्स ऑफ विनोद्स वाइफ, ये विनोद्स पोजेसिव आर कमिंग. तो अगर आपको इसी सेंटेंस को करेक्टली लिखना है, सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बिकॉज टू पोजेसिव आर नेवर यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म. डन. अब इसको देखो, ही इज माई अंकल्स डॉटर्स हस्बैंड. वो मेरे अंकल की डॉटर के हस्बैंड हैं. सेंटेंस तो करेक्ट है. वो मेरे अंकल की डॉटर के हस्बैंड हैं. बट नाउ अगेन द सेम रूल, दो पोजेसिव एक साथ नहीं लगेंगे, एक ही में ही लगा. तो कैसे होगा वो? ही इज हस्बैंड ऑफ माई अंकल्स डॉटर. तो जस्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज memorize this rule that double possessives are never used in a sentence. Done with this rule? Very good. So here we finished the possessive case rules of our noun. Now some more rules. I'll try to complete this topic today, and I assure you one thing, after just analyzing all the rules, you will be able to crack any question based on the errors of noun. This is my open challenge to you. This is my promise to you. This is my assurance to you. So some more rules for spotting the errors of noun, and we will end this topic here today. Now, as I have told you when I was giving you the noun basic, the word cousin. cousin मतलब आपका cousin, आपका sibling, आपका blood relation नहीं, but आपका sibling, आपके चाचा का बेटा, आपकी बुआ का बेटा, आपकी मौसी का बेटा, आपके मामा का बेटा या बेटी, बेटा या बेटी, जो भी, वो क्या हुए? वो है cousin. अब the rule with cousin is never followed by brother or sister. याद रखना. आप बोलते हो कभी वो मेरा कजन भाई है, वो मेरी कजन बहन है, he is my cousin brother. Wrong English. You speak wrong English. That is the difference between us and between other institution teaching you English. ये sentence grammatically wrong है. cousin के बाद कभी भी ब्रदर और सिस्टर नहीं लगता अगर आपने यहाँ जेंडर मेंशन कर दिया है. अब ही से समझ में आ रहा है यार कि मेल होगा,
ही से समझ में आ रहा है कि लड़का ही होगा। कजन का मतलब है आपका रिलेटिव। अब ही मतलब भाई, मेल, तो कजन भाई। तो जब ही यूज हो गया, इसके बाद आप ब्रदर नहीं लिखोगे। दिस इज द रूल। अगर यहां ब्रदर लिखा है सो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। ही इज माई कजन एंड यू आर डन, शी इज माई कजन एंड यू आर डन। अब जब यहां समझ में आ रहा है शी मतलब फीमेल, तो यहां पर सिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज रॉन्ग। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी भी कजिन के बाद आप ब्रदर या सिस्टर मेंशन नहीं करोगे अगर पहले जेंडर दिया हुआ है तो। क्लियर? ओके। नाउ द नेक्स्ट रूल, नाउन आफ्टर वन should always be plural। अब ये क्या है, 1 2 कहां से आ गया? Now see the phrase, जब भी आप सेंटेंस 1 से स्टार्ट कर रहे हो, याद रखना ONE 1 से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसके आगे कोई फ्रेज है और उसमें नाउन है तो वो हमेशा प्लूरल होगा। सी, वन ऑफ द बॉयज, 1 से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बॉयज क्या है? नाउन। कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। द सेंटेंस इज वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? लड़कों में से एक एब्सेंट है। See, again I am telling you, this type of sentence always comes in the exam. Mind this. Open challenge to you all. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, 100%. Now, one of the boys is, क्या ये इस करेक्ट यूज है? Yes, ये करेक्ट है। Now, one of the boys is absent. अब इस सेंटेंस को देखो, one of the boys is absent। जब भी हम one of the यूज करेंगे उसके बाद का जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल नाउन होगा, याद रखना। क्लियर? उसके बाद का जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। क्यों सिंगुलर होगा? बिकॉज ये वर्ब हमने वन के लिए लगाया है, बॉयज के लिए नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जब भी सेंटेंस वन ऑफ द से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद अगर नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, दोनों में से कोई भी आएगा तो वो प्लूरल होगा। सी दिस, वन ऑफ देम। अब नाउन को अगर कोई रिप्लेस करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन है। तो यहाँ पे अगर प्रोनाउन भी लग रहा है तो वो भी प्लूरल है। प्लूरल है। अब यहाँ पे हैज सिंगुलर है, जैसे यहाँ इज सिंगुलर था। तो जस्ट टू कंक्लूड, वन ऑफ द इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। दैट इज द रूल। डन? भूलेंगे तो नहीं? ओके। नाउ द नेक्स्ट, wages and wage. One more confusing noun is here. Wages क्या होते हैं? Wages मतलब रोजी, दिन का मेहनताना, जैसे हिंदी में बोलते हैं दिहाड़ी। Whenever a labor works और उसको पूरे दिन का मेहनताना मिल रहा है, एक दिन की कमाई को बोलते हैं wages। एक दिन की दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो डेली काम करते हैं, तो उन एक दिन की मजदूरी को बोलते हैं दिहाड़ी। उनकी डेली अर्न जो कमाई है, अर्निंग है, उसको हम बोलते हैं वेजेस। एक दिन की कमाई को, डेली अर्निंग को। क्लियर? अब अगर हम देखें वेज, स्पेलिंग मिलती जुलती है, लेकिन ये इसका सिंगुलर नहीं है। वेज का मीनिंग होता है पनिशमेंट। वेज का मीनिंग होता है पनिशमेंट, सजा। तो ये दोनों एक दूसरे के सिंगुलर और प्लूरल नहीं है, दोनों का मीनिंग अलग है, याद रखना। ओके, सी, वेजेस ऑफ लेबर आर गिवन। जितने भी लेबर हैं उनको उनकी डेली की दिहाड़ी दे दी गई है। अब वेजेस प्लूरल है, इसलिए यहां वर्ब भी प्लूरल लगा, याद रखना इसके लिए। क्लियर? नाउ वेज
ऑफ सिन, सिन मतलब पाप, वेज ऑफ सिन इज डेथ, पाप की सजा मौत है। अब ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही लगा। क्लियर, याद रहेगा वेज और वेजेस का डिफरेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज planes, cars, trains and vehicles can be used with apostrophe comma. Now I gave you the rule कि apostrophe comma या apostrophe s is never used with the non-living thing. But हम unit of time के लिए, unit of money के लिए, traveling के जो phrases रहते हैं उनके लिए हम apostrophe s लगा सकते हैं। सेम वैसे ही अगर हम vehicles की बात कर रहे हैं, हम plane की बात कर रहे हैं, हम train की बात कर रहे हैं, उसमें हम apostrophe s यूज कर सकते हैं। क्लियर, सी द प्लेन्स कॉकपिट, तो यहाँ apostrophe है, प्लेन का कॉकपिट, प्लेन का कॉकपिट, सी द कॉकपिट ऑफ द प्लेन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। द शिप्स बेल, शिप की बेल, शिप की बेल, तो बेल ऑफ द शिप, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो बोथ द वेज आर करेक्ट। क्लियर, डन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट रूल फॉर नाउ, सी व्हेन द वर्ड एल्स इज यूज्ड आफ्टर nobody, somebody, no one, someone, then apostrophe s is added to else। अब मैंने आपको बताया है जब भी आप apostrophe लगा रहे हो उसका हिंदी में मीनिंग आता है का या की। क्लियर, सी दिस इज राहुल्स कार। अब यहां मीनिंग देखिए आप, ये राहुल की कार है, आया। अब इसी ट्रिक को याद रखेंगे। सी दिस इज समबडी एल्सेस बुक। अब इसको हिंदी में देखिए, ये किसी, सी किसी और की बुक है, ये किसी और की बुक है। तो जब भी आप apostrophe s लगाएंगे वो else में लगेगा, somebody में नहीं। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे this is somebody's else book। सी एरर आएगा कैसे, आपको एग्जाम में सेंटेंस कैसे आएगा और आपको बताना पड़ेगा कि क्या सही है। दिस इज somebody else book। अब या तो सेंटेंस ऐसे आएगा या आपके लिए सेंटेंस आएगा दिस इज somebody's else's book। अब आप मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आपको पता है करेक्ट क्या है। सी आई हैव गिवन बोथ द रॉन्ग फॉर्म्स आल्सो विद द करेक्ट फॉर्म। अब अगर हम इसको देखें, दिस इज somebody's else book, हम अगर हिंदी में बोल रहे हैं ये किसी और की बुक है, किसी और की, तो यहां आना चाहिए किसी की और बुक है, तो ये गलत। अब ये देखिए दिस इज somebody's else book। मैंने आपको अभी एक रूल कराया बेटा कि जब भी आप सेंटेंस लिखेंगे डबल पोजेसिव्स आर नेवर यूज्ड। ये एक तो इस तरह से गलत हो गया, दूसरा जब आप बोल के देखेंगे ये किसी की और की बुक है, बोलने में ही गलत लग रहा है, तो ये भी गलत। सी दिस इज somebody else's book, ये किसी और की बुक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए बच्चा सही सेंटेंस सही क्यों है, रॉन्ग सेंटेंस रॉन्ग क्यों है। तो आई होप आपको ये सारे रूल अभी तक के समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड टू जस्ट clear all the doubts of noun based on the rules of noun। तो यहाँ पे so I conclude this topic here, I complete the topic of noun here। noun में इसके अलावा और कोई भी रूल नहीं है। आप एनडीए के लास्ट ईयर के पेपर्स अगर देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन नाउन के एरर्स पे आए हैं वो सब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने ये रूल्स अच्छे से किए हैं। तो नाउ फ्रॉम
tomorrow, I'll teach you, I'll take some of the questions from the last year papers based specially on errors of noun, so that you can apply these rules on those questions. Clear? So just stay tuned for tomorrow's lecture, where you will be solving NDA exam paper and the questions based on errors of noun. Till then, practice all the rules properly, and if you have any of the doubt, just connect to me on my WhatsApp. All this for today. Stay connected, study hard, and thank you.